Good morning, student. Welcome to Thompson classes. Today, we are going to discuss non-uniform circular motion. Previous lecture में हमने uniform circular motion पे स्टेज दिया था और हमने डिस्कस किया था problem which are related with uniform circular motion, that is conical pendulum, bank rod, horizontal rod, and so on. डेड वॉल एंड सो ऑन। यहां पर हम लोग मेरा मेन स्ट्रेस रहेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है एक्चुअली? तो दो सर्कुलर मोशन इन विच स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल थ्रू आउट इस मोशन कीप ऑन चेंजिंग is called as non-uniform circular motion. Let us consider we have a particle and this particle is moving in a circle with O as a center and a small r with a radius. क्या देख रहे हैं कि पूरे मोशन के दौरान में पार्टिकल का स्पीड इज चेंजिंग। यहां पर v1, यहां पर हमने v2 ले लिया, v3 एंड v4, यानी पूरे मोशन के दौरान में पार्टिकल का स्पीड भी चेंज हो रहा है एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग। अभी पार्टिकल इधर जा रहा है एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। इट मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज ऑल्सो चेंजिंग। और किसी भी सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तभी बदल सकता है यदि किसी पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगे एंड दैट फोर्स इज जनरली कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। एंड दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन व्हाई द डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग? तो डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल विल चेंज if and only if a force speed of a particle will change if and only if a force act on a particle tangent to it, and this force is generally called as tangential force, and this tangential force is responsible for producing tangential acceleration. So those circular motion in which speed as well as direction of a particle keep on changing throughout its motion is called as non-uniform circular motion. In non-uniform circular motion, in in non-uniform circular motion, we have two force, Ft, that is tangential force which act tangential force act tangent to the circle, tangent to the circle. Tangential force will act tangent to the circle. Tangent to the circle. And yet this tangential force will always produce tangential acceleration, and tangential acceleration is generally equal to dv upon dt. चूंकि इस पे एक और फोर्स लग रहा है v में, सेंट्रिपिटल force, and this force will act towards the center of the circle. Centripetal force act towards center of the circle. This centripetal force will always produce centripetal acceleration, and centripetal acceleration आपको ऑलरेडी बताया था पिछले क्लास में, v स्क्वायर आर और ओमेगा स्क्वायर आर। यानी whenever particle move in a circle with non-uniform motion, in this case particle will experience two different type of force. पहला tangential force, another centripetal force. This tangential force is responsible for producing tangential acceleration, that is mass into tangential acceleration, that is mass, or tangential acceleration is equal to dv upon dt. लेकिन एट द सेम टाइम पार्टिकल अपने ऊपर एक सेंट्रिपिटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड दिस सेंट्रिपिटल फोर्स विल चेंज द डायरेक्शन, एंड सेंट्रिपिटल फोर्स इज जनरली इक्वल टू मास into centripetal acceleration, that is equal to mass into v square upon r. Now we have to consider
only those circular motion, those vertical, and such type of situation will always rise in a vertical plane. Vertical circular motion and non-uniform circular motion will always rise in a vertical plane. तो पहला, such type of situation will always rise, point form में, such type of situation, such type of situation will always rise in vertical plane. इस तरह का सिचुएशन केवल वर्टिकल प्लेन में लाई करेगा. And we have to consider only those vertical circular motion in which conservation of energy can be applied. अगर एनर्जी कंजर्व नहीं है, then problem will become more complicated. And we have to consider only those vertical circular motion. We have to consider only those circular motion in which conservation of mechanical energy can be applied. Conservation of mechanical energy can be applied. हमें वही वर्टिकल सर्कुलर मोशन को डिस्कस करना है in which conservation of mechanical energy can be applied. Now the question is, what are the problems related with the vertical circular motion? The problems which are related with vertical circular motion are problem related with vertical circular motion are vertical circular motion are first में a particle attached to end of the rod and made to rotate in a vertical circle. पहला, a particle of mass m attached to end of rod and made to rotate in vertical circle with other pivoted end. Another problem, particle attached to end of the string and made to rotate in a vertical circle. Particle attached to end of the string, attached to end of string and made to rotate in vertical circle. तीसरा, C में, a particle is moving in the inner surface of the circle which is fixed in a vertical plane. चौथा, that is D, particle is moving in the outer surface of the sphere or ball. हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हमने 4 टाइप का कहा. तीसरा हमने ये कहा कि पार्टिकल इज मूविंग इन द इनर सरफेस ऑफ द सर्कल, यानी तीसरा में ये हमारे पास सर्कल विच इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन द इनर सरफेस ऑफ द सर्कल. चौथा, फोर्थ में we have a bowl and a particle of mass m is kept on the outer surface of the bowl and then it is moving in a circle. What we are observing, the problem which are related with vertical circular motion are as shown in figure, and this all vertical circular motion is further divided into 2 categories. First, motion restricted to circular path and motion not restricted to circular path. So above vertical circular motion,
vertical circular motion, above vertical circular motion, above vertical circular motion is divided into कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ, यानी मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ, मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ। एंड सेकेंड में मोशन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ, मोशन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ। फॉर एग्जाम्पल मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ हम लोग क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल, सपोज हियर वी हैव अ सर्कल, एंड दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल विच इज, एंड वी हैव अ रॉड जो हमारे पास यहाँ पाइवोटेड है, and a block of mass m is attached to it, and this rod is made to rotate in this circle. इस सर्कल में this made to rotate, ये हमारे पास सेंटर, and let this point be A, B, C and D. If this rod is projected with initial velocity u, यह रॉड धीरे धीरे यहाँ पहुंचेगा, और यदि यहाँ पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया, दिस रॉड इज गोइंग टू ऑसिलेट, बट इट विल मूव इन अ सर्कल ओनली। अगर हमने पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट कर दिया, यदि हमने पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया, यह पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ आया, एंड सपोज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस पोजिशन बिकम 0, then also this rod is going to move in a circle only, it is not going to leave the circle. अगर हमारे पास highest point पे जा रहा है, then it is going to describe the circle, but in a circle only, this rod is not going to leave the circle. Motion not restricted to circular path, यानी a particle of mass m is attached to, ये हमारे पास एक circle, and suppose a particle of mass m a center, and a particle of mass m is attached to end of this string, and it is projected with initial velocity u. मान लिया कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है मास m का, और जिसे हमने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, और इस पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट कर दिया। व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस पोजीशन बिकम 0, देन आल्सो दिस पार्टिकल विल ऑसिलेट। लेकिन अगर इस पार्टिकल का यहां से वेलोसिटी इज टेंशन इज सफिशिएंट ग्रेटर देन 0, इन दिस केस दिस पार्टिकल इज गोइंग टू डिस्क्राइब अ सर्कल। लेकिन अगर पार्टिकल यहां से चला और इस पोजीशन पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और यदि इस पोजीशन पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी बिकम 0, सॉरी पार्टिकल का टेंशन बिकम 0, एट दिस पोजीशन velocity is not equal to 0. यहां पर हमारा velocity is not equal to 0, but tension becomes 0. In this case, particle is going to leave the circular path and it will cover a parabolic path. So here particle is leaving the circular path. लेकिन in this case, at highest point, if velocity is greater or equal to 0, the particle is going to describe the circle. तो vertical circular motion is, हमने ये कहा कि vertical circular motion is further divided. हमने जो ऊपर कहा कि the problem which are related with vertical circular motion are a particle of mass m attached to end of the string and made to rotate in a vertical circle, particle is attached to end of the string and then made to rotate in a vertical circle, rod made to rotate in a vertical circle, particle is moving in the inner surface of the circle which is fixed in a vertical plane, and particle is moving on the outer surface of the hemisphere. यानी above problem is further divided into two categories, motion restricted to circular path and motion not restricted to circular path. सबसे पहले मैं केस फर्स्ट डिस्कस कराऊं, दैट इज मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ। केस फर्स्ट में मैं डिस्कस कराऊं मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन देगा क्या, विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल in order to describe this complete circle.
तो क्वेश्चन आपको किस फॉर्मेट में देगा कि अ पार्टिकल ऑफ मास m, क्वेश्चन दिया या यहां पर सिचुएशन में मैं लेके चला हूं अ पार्टिकल अ पार्टिकल a particle of mass m, a particle of mass m attached to a particle of mass m attached to end of rod which is pivoted at other end, which is pivoted at other end. A particle of mass m is attached to end of the rod and which is pivoted at other end. If this particle is made to with what minimum velocity? With what minimum velocity? With what minimum velocity? With what minimum velocity should the particle be projected? Should particle be projected? Should particle be projected from lowest point of the circle, lowest point of circle to describe complete circle, to describe complete circle, to describe complete circle. ऑप्शन हमने दे दिया ए में v ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट 5gr, b ग्रेटर इक्वल टू 5gr, c में हमने ऑप्शन लिया दैट इज v इज ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट 4gr एंड, और डी में हमने ऑप्शन लिया v इज ग्रेटर देन अंडर रूट 4gr. विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्लियर? तो लेट अस विजुअलाइज द सिचुएशन. अब सिचुएशन को हम लोग देखते हैं. हमने ये लिया कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू एंड ऑफ द रॉड विच इज पाइवोटेड एट अदर एंड with what minimum velocity should particle be projected from the lowest point of the circle in order to describe a complete circle. तो let us visualize the situation. यहां सिचुएशन को हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं क्या कि ये हमारे पास वी हैव अ सर्कल, ये हमारे पास सर्कल है एंड सपोज ए सेंटर, और ये हमारे पास रॉड एंड अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to it, and this rod is pivoted at other end and length of this rod is L. Let u be the velocity with which the particle is projected. जैसे जैसे यह पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा इस वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग. सपोज दिस पॉइंट इज A and at the highest point suppose the velocity of this particle is greater or equal to 0. क्योंकि एक कंडीशन है मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ का कंडीशन क्या है? v should be greater or equal to 0. ये कंडीशन नहीं हो सकता कि t should be greater or equal to 0. दैट इज मोशन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ. तो मोशन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ में एट हाईएस्ट पॉइंट v should be greater or equal to 0. Now let us apply the conservation of mechanical energy between these 2 points. हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं बिटवीन पॉइंट ए, हमने रेफरेंस लेवल ले लिया बिटवीन पॉइंट ए एज वेल एज दिस पॉइंट इज बी. तो लेट अस अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. हम लोग क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u. तो इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी. मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या है आपके पास? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए
ए इक्वल होना चाहिए किसके, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। लेकिन हम लोग यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में रेफरेंस लेवल पे जनरली पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो, लेकिन यहां पर इनिशियल वेलोसिटी यू है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर। लेकिन रेफरेंस हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पर वेलोसिटी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यानी इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि ये रेफरेंस लेवल से ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव, और यह पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, एम जी। और एच क्या है, यहां से यहां एल और यहां से फिर फर्दर एल, तो एच इज जनरली इक्वल टू 2L। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एट दिस पोजीशन। जैसे ही हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू यहां पर 2mgl प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और m को कॉमन ले लिया, तो आपके पास यू स्क्वायर इक्वल टू 4gl प्लस वी स्क्वायर। इस टर्म को इधर लाएं तो यू स्क्वायर माइनस 4gl इज जनरली इक्वल टू वी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1 ए। नाउ आपके पास कंडीशन क्या है कि पार्टिकल सर्कल को तभी डिस्क्राइब कर सकता है if velocity at highest point is greater or equal to 0. तो particle is going to describe, particle will describe circular path कब, if v is greater or equal to 0। और आपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपने भी कितना निकाला है, दिस, यानी यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज यहां पर पर्टिकुलर हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज v इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास v क्या है, हमारे पास v स्क्वायर, तो v स्क्वायर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर इक्वल टू 0, और v स्क्वायर है हमारे पास u स्क्वायर माइनस 4gl इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर u इज ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट 4gl, एंड इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज v इज ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट 4gl। तो अगर इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ विथ रिस्ट्रिक्टेड मोशन, यानी इट इज नॉट गोइंग टू लीव द सर्कुलर पाथ, उस केस में हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, v at highest point should be greater equal to 0, और v का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 4gr। जनरली आपके ऑप्शन में आप जनरली अंडर रूट 5gr मार्क करते हैं, तो दैट इज मोशन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ। अगर आपको इस तरह के और इंटरेस्टिंग कंडीशन के साथ, सो दैट वी कुड इजिली सॉल्व g एज वेल एज नीट प्रॉब्लम इजिली, सो आप हमारे थॉमसन को सब्सक्राइब करें, थॉमसन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे जाएं, थॉमसन क्लासेस के एक से एक ट्रिक अवेलेबल हैं, उसे विजुअलाइज करें, और गूगल प्ले स्टोर से भी हमारे थॉमसन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ फिर अब क्वेश्चन राइज होता है क्या कि अगर मोशन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्कुलर पाथ होगा, इस केस में आप हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, अगर इफ मोशन not restricted to circular path, तो if motion is not restricted to circular path, motion not restricted to circular path, motion not restricted to circular path। और क्या कंडीशन होना चाहिए, इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सेफ रहें, और यदि आपने हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक को एंजॉय करें। थैंक यू।